بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن نبی داؤد کا سبق نمبر 41 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے کتاب الاشربہ، اور اسی کے ضمن میں انشاءاللہ مختلف عنوانات کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ باب دیکھیے، باب فی تحریم الخمر، یعنی کہ شراب کی حرمت کا بیان۔ تو دیکھیے، کتاب الاشربہ کتاب الاطعمہ ہی کا تتمہ ہے۔ اب اشربہ جمع ہے شراب کی۔ شراب کہتے ہیں ہر پینے کی چیز کو، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، اور اردو میں شراب کا لفظ اس چیز پر بولا جاتا ہے جس کو عربی میں خمر کہتے ہیں، اور عربی میں جو شراب ہے اس کو اردو میں مشروب کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شراب لغت میں تو ہر مایہ چیز جو پی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں شراب نشہ آور مشروب کو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس کو پینے سے نشہ پیدا ہو جائے، چاہے وہ انگور کے شیرے سے ہو یا پھر آم ہو، یعنی کسی چیز کا عرق وغیرہ نکالا ہوا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ نشہ لانے والی چیز خواہ وہ انگور کا شیرہ ہو یا کسی دوسری چیز کا شیرہ ہو، کیونکہ شراب مدینے میں حرام ہوئی ہے، اور اس زمانے میں انگور کی شراب کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، بلکہ وہ کھجور سے بنائی جاتی تھی۔ تو خمر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ لغت میں خمر کے معنی ہے ڈھانپنا، چھپانا، خلط ملط کرنا، اور چونکہ شراب انسان کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے اور اس کے فہم اور اس کے شعور کی قوتوں کو خلط ملط کر دیتی ہے، اس لیے اس کو خمر کہا گیا۔ اب جو چیزیں نشہ پیدا کرتی ہیں اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو شراب کی ہے جو انگور سے اس طرح بنتی ہے کہ انگور کا عرق نکال کر کسی برتن میں رکھ دیتے ہیں کچھ دنوں کے لیے۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہ گاڑھا ہو جاتا ہے اور اس میں ابال پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ نشہ آور ہو جاتا ہے، تو اس کو عربی میں خمر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر صاحبین جو ہیں وہ جھاگ پھینکنے کی شرط نہیں لگاتے۔ اسی طرح علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرمت کے باب میں تو صاحبین کے قول کو لیا جائے گا، مطلب یہ کہ اگرچہ جھاگ نہ پھینکے تب بھی وہ حرام ہے، لیکن حد جاری کرنے کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو لیا جائے گا، یعنی حد ایسی شراب پینے والے پر جاری ہوگی جو جھاگ پھینکنے لگے۔ پھر دوسری قسم یہ ہے کہ انگور کے عرق کو قدرے جوش دے کر رکھ دیتے ہیں، اس کو عربی میں بازک، اور پھر انگور کا وہ عرق جس کو اتنا پکایا جاتا ہے اس کا چوتھائی حصہ جل کر صرف 3/4 حصہ رہ جائے، تو اس کو طلا کہا جاتا ہے۔ یہ بھی خمر کی ایک قسم ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے خمر کی وہ یہ ہے نقیع تمر، جس کو سکر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ تر کھجور کا وہ شربت وہ گاڑھا ہو جائے تو اور اس میں جھاگ پیدا ہو جائے تو پھر یہ خمر بن جاتی ہے۔ اور چوتھی قسم ہے نقیع زبیب، یعنی کہ منقع اور کشمش وغیرہ کا وہ شربت جس میں ابال اور جھاگ پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیے، ان چاروں قسموں میں سے پہلی قسم تو بغیر کسی قید کے حرام ہے، اور باقی 3 قسمیں اس صورت میں یہ بالاتفاق حرام ہے جبکہ ان میں جوش دے کر رکھ دیا جائے، یعنی ان میں جوش آ جائے اور ان میں گاڑھا پن آ جائے تب تو یہ حرام ہے، کیونکہ اس صورت میں ان چیزوں میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی، یعنی نشہ آور چیزیں نہیں پائی گئی، تو ان کو حرام نہیں کہیں گی۔ مثلا کچھ دیر کے لیے پانی میں کھجوروں کو بھگو کر رکھ دیا، یہاں تک کہ وہ پانی شربت کی طرح ہو جائے اور اس میں کسی قسم کا کوئی بھی تغیر، کوئی بھی تبدیلی واقع نہ ہو، تو پھر اس کا پینا درست ہوگا۔ اب ان کے علاوہ پینے کے 4 مشروب اور ہیں جن کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حلال ہونا ثابت ہوا ہے، بشرط یہ کہ ان کو معمولی طور پر اس طرح جوش دیا گیا کہ ان میں نشہ پیدا نہ ہو، اور اگر ان میں نشہ پیدا ہو گیا ہو تو پھر یہ قسمیں بھی حرام ہوں گی۔ اسی طرح اگر ان کو جوش دیے بغیر
काफी अरसे के लिए रख दिया गया और इसमें झाग पैदा हो गया, तब भी इनका पीना हराम होगा। अब इन चारों में से एक किस्म तो नबीज है। नबीज वो मशरूब है जिसमें खजूरें डाली जाएं, जिससे पानी मीठा हो जाए, मगर आज़ा को सुस्त करने वाला और नशा आवर ना हो। लेकिन अगर ये नशा आवर हो जाए तो फिर इसका पीना हराम होगा, ठीक है। और दूसरी किस्म है खलीब, यानी वो शरबत जो खजूर और मुनक्का को कदरे जोश देकर इनसे निकाला गया हो, इसको कहते हैं खलीब। और तीसरी किस्म जो बतलाई गई वो ये है कि वो नबीज है, वो शरबत है जो शहद और गंदुम, जो जवार वगैरह को पानी में डालकर उसको जोश देकर उसका मशरूब तैयार किया जाता है, तो फिर ये भी अगर नशा आवर ना हो तो फिर जायज है। और चौथी किस्म जो है मुसलसल जमनी, इसकी सूरत ये होती है कि अंगूर के अरक को इतना पकाया जाता है कि इसका वो हिस्सा खुश्क हो जाता है और एक हिस्सा शराब की शक्ल में बाकी रह जाता है। तो इन चारों चीजों के बारे में इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इनको इबादत के लिए, ताकत हासिल करने के लिए इस गर्ज से पिए तो जायज है, और अगर किसी और मकसद के लिए इनको पिए तो फिर हराम है। लेकिन यहाँ पर हजरत इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के नजदीक इबादत के लिए ताकत हासिल करने की गर्ज से भी इसका पीना हराम है। हदीस की इबारत देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबी क़ाल हद्दसना अहमद इब्न हम्बल क़ाल हद्दसना इस्माईल इब्न इब्राहीम क़ाल हद्दसना अबू हय्यान क़ाल हद्दसनी शअबिशु अन इब्न उमर अन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नज़ला तहरीमुल ख़म्रि यौमा नज़ला वहिया मिन ख़म्सति अशियाअ मिनल इनबि वत्तम्रि वल असलि वल हिंतति वश्शईरि वल ख़म्रु मा ख़ामरल अक़ल वसलातुन वदित्तु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम युफ़ारिक़ना हत्ता यहद इलैना फ़ीहिन्ना अहदन नंतही इलैहिल जद्दु वल कलालतु व अब्वाबुन मिन अब्वाबिर रिबा। तो देखिए यहाँ पर इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन शराब की हुर्मत नाजिल हुई तो वो 5 किस्म की शराब के बारे में थी। एक अंगूर की शराब, खजूर की शराब, शहद की शराब और गंदुम यानी गेहूं की शराब और जौ की शराब, और वो शराब जिससे अकल जायल हो जाए। और 3 चीजें ऐसी थी जिनके बारे में मैं चाहता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा ना हो जाएं जब तक कि हमें इनके बारे में बतला ना दें। एक तो मिरास में दादा का हिस्सा, दूसरे कलाला का हुक्म और तीसरा सूद के चंद अबवाब और मसाइल। तशरीह देखिए इसकी, नज़ला तहरीमुल ख़म्रि वहिया मिन ख़म्सति अशियाअ। तो देखिए यहाँ पर हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस खुतबे में इरशाद फरमाया कि खमर 5 चीजों की होती है। ये इसलिए कि ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि कुरान करीम की ये आयत इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, यानी लोगों को मालूम हो जाए कि इस आयत में खमर सिर्फ माए इनब के साथ खास नहीं है, बल्कि हर वो चीज जो अकल को मदहोश करने का, अकल को ढांपने का सबब बन जाए वो खमर है और वो हराम है। फिर आगे फरमाया वसलासुन वदित्तु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम युफारिकना हत्ता यहद इलैना फ़ीहिन्ना अहदन। मतलब ये है कि यहाँ पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रही हैं कि 3 मसले ऐसे हैं जिनके बारे में मेरी तमन्ना ये थी कि क्या ही अच्छा होता कि इन मसाइल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में अच्छी तरह वजाहत फरमा देते ताकि हम इन पर अच्छी तरह अमल कर लेते। फिर आगे इन 3 चीजों की तायीन भी फरमा दी कि वो कौन सी 3 चीजें हैं। पहली चीज जद्दू यानी दादा का तरका। अब इसमें इख्तिलाफ है कि दादा की मौजूदगी में भाइयों को मिरास यानी हिस्सा मिलेगा या नहीं, और अगर मिरास मिलेगी तो कितना होगा,
इसमें हजरत सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दरमियान भी इख्तिलाफ रहा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार हजरत सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को दादा के तरके के मसाइल के सिलसिले में जमा किया, लेकिन इतने में छत से सांप गिर गया और जमा होने वाले तमाम सहाबा किराम जो थे वो मुंतशिर हो गए। इस तरह ये मसला हल नहीं हो सका। अब इस मसले में अहनाफ का भी इख्तिलाफ है आपस में, यानी कि साहिबैन के नजदीक दादा की मौजूदगी में सिर्फ भाई और बहन भी वो जो अखियाफी हो वो साकित होते हैं। अब अखियाफी किसे कहा जाता है? यानी अखियाफी बहन वो है जो माँ की तरफ से हो, ठीक है, माँ की तरफ से शरीक हो मगर बाप दूसरा हो। और साहिबैन यहाँ पर ये कहते हैं कि अल्लाती और आईनी ये जो है ये साकित नहीं है। आईनी कहा जाता है सगी बहन या सगा भाई जो माँ बाप जिनके एक हों, ठीक है। और अल्लाती कहा जाता है कि बाप की तरफ से बहन भाई हो, यानी बाप की तरफ से शरीक हो मगर माँ दूसरी हो। जबकि यहाँ पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि के नजदीक दादा की मौजूदगी में सब बहन भाई चाहे वो आईनी हो, अल्लाती हो या फिर अखियाफी हो वो महरूम हो जाएंगे मिरास से। फिर आगे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कलाला का लफ्ज जिक्र किया। अब कलाला के मिस्दाक में भी उलमाए किराम का इख्तिलाफ रहा है। अब कलाला कहते किसे हैं? तो कलाला कहते हैं जिस शख्स का बाप या बेटा दोनों ना हो। और एक दूसरी जगह ये भी जिक्र किया गया है कि कलाला से मुराद है जिसका बेटा ना हो अगरचे वालिद हो। फिर आगे फरमाया अब्वाबु मिन अब्वाबिर रिबा, तो यहाँ पर रिबाउल फजल मुराद है, क्योंकि रिबा उल नसिया तो मुत्तफिक अलैह है, रिबा उल फजल में जो है वो इख्तिलाफ है। बाद में इन हजरात ने रुजू फरमा लिया था, इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु चाहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अहकाम तफसील से बयान फरमा देते। रिबा उल फजल ये है कि वो मखसूस अमवाल यानी अमवाले रबिया की खरीदो फरोख्त में ऐसी ज्यादती का पाया जाना कि दूसरी जानिब में इस ज्यादती का कोई इवज ना पाया गया हो, ठीक है। मसलन 1 दिरहम की बै 2 दिरहम के बदले में की, यानी कि एक जिन्स की चीजों में 10 बस्त ज्यादती के इवज बै हो यानी खरीदो फरोख्त हो। मसलन 4 किलोग्राम गंदुम हो, उसको नगद अगर बेचा जाए 8 किलोग्राम गंदम के इवज उसको फरोख्त किया जाता है, तो ये रिबाउल फजल है। इसको रिबाउल हदीस भी कहा जाता है। और दूसरी किस्म रिबाउल नसिया है जिसकी हुर्मत पर सबका इत्तिफाक है। अब रिबाउल नसिया क्या है? तो वो ये है कि अमवाले मखसूसा की बै में कब्जा जो है वो फिल मजलिस यानी मजलिस में नहीं पाया गया। तो यहाँ पर देखिए हाफिज इब्ने हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस कलाम से ये मालूम होता है कि इनके पास बाज अब्वाबे रिबा के बारे में नसूस यानी अहदीस नस दलील मौजूद थी और बाज के बारे में नस मौजूद नहीं थी। इसलिए इनकी ये तमन्ना कर रहे थे कि काश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजाहत फरमा देते। अब रिबाउल फजल का हुक्म ये है कि जब इनका तबादला इन्हीं की जिन्स के साथ किया जाए तो फिर ये जरूरी है कि वो दोनों चीजें बराबर बराबर हों और ये मामला दस्त बस्त किया जाए। इसमें उधार भी नाजायज है और कमी भी नाजायज है और ऐसा मामला जो है वो सूदी होगा, यानी अगर इसमें कमी की गई या उधार किया गया या फिर एक ही जिन्स का तबादला ना हुआ तो फिर ये मामला सूदी हो जाएगा। इसी तरह रिबा उन नसिया का हुक्म ये है कि मतलब कि वो ज्यादती जो मुद्दत के मुकाबले में वसूल की जाए। तो कुरान करीम और सुन्नत नबविया और असारे सहाबा और इजमाई उम्मत ने कर्ज पर तय करके ली जाने वाली हर ज्यादती को रिबा यानी कि सूद करार दिया है। तो इसलिए इससे बचना चाहिए क्योंकि ये सूद के ही जुमरे में आ जाता है। और रिबा उन नसिया की हुर्मत के बारे में तो सबका
जो है इत्तिफाक है। इख्तिलाफ जो रहा है वो रिबाउल फजल के बारे में रहा है, लेकिन बाद में इन हजरात ने रुजू फरमा लिया था। इसलिए यहाँ पर हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस कलाम से ये मालूम होता है कि इनके पास बाज अब्वाब रिबा के बारे में नस मौजूद थी और बाज के बारे में नस मौजूद नहीं थी। इसलिए इसकी वो तमन्ना कर रही हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए अच्छी तरह वजाहत फरमा देते ताकि हम इन पर अच्छे तरीके से अमल कर लेते, यानी कि हर कोई इसकी उससे रुक जाता और हर कोई सूद की कबाहत के बारे में जान लेता। हमारा आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।